नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद के बजट सत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्यसभा में एक मत से पारित हो गया। विधेयक पारित होने से 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में उन्नयन हो गया। आइए देखते हैं विधेयक पर सदन में हुई अहम चर्चा का सारांश। The Central Sanskrit University Bill 2019, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank to move a motion for consideration of the Central Sanskrit University Bill 2019. Please. श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अनुसंधान के लिए संस्कृत संवर्धन के कृपया वेल में आकर इस तरह की स्थिति न करें। के विकास के लिए विश्वविद्यालयों के कृपया से संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उत्पन्न करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। श्रीमान, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने का लोकसभा द्वारा विधेयक पारित हुआ है। श्रीमान, आज उसी विधेयक को हम आपकी अनुमति, सदन की अनुमति के लिए यहाँ पर लाए हैं। डॉक्टर सत्यनारायण जातिया। निश्चित रूप से इस विधेयक के माध्यम से हमने अपने 3 संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालयों को उन्नयन करने का काम किया है और ये 3 डीम्ड विश्वविद्यालय अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति का उन्नयन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के करने के लिए यह प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। जयराम रमेश जी। आदरणीयाः उपसभापति महोदयाः, अस्माभिः अधुना विचार्यमाणम् अविलम्बेन च स्वीकरिष्यमाणम् इदं विधेयकं संस्कृतभाषस्य भूरितरं साहाय्यं करिष्यति। Please. This bill that we are about to discuss and will soon pass will greatly help the cause of the Sanskrit language. Idam videyakam vartamanani 3 संस्कृत संस्थानि केंद्र विश्वविद्यालयत्वेन परिणम्यते. This bill converts 3 existing Sanskrit institutions into central universities. Aham स्वयमेव तेषु अन्यतमं तिरुपति स्थितौ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम अगमम. I myself have been visiting the National Sanskrit University, the deemed university in Tirupati, which will soon become a central university because of this bill. उपसभापति महोदयाः, संस्कृतं सर्वदा केषाञ्चिदेव आधिपत्यस्य विषयः अत्येतद् दुःखवाहः. Sanskrit has always been the monopoly of a few, and that is a matter of great sadness and tragedy for India. Adhuna bahunam sampada bhavitavyam. We have to make this monopoly of the few into the treasure of the many, and that is what this bill should hope to accomplish. Sir, Sanskrit has enriched Indian languages, and many Indian languages have contributed to Sanskrit. Sanskrit is part of our legacy. We are proud of the legacy. However, we should not forget that this beautiful language, this scientific language, this magnificent language has also been the instrument of caste oppression, of caste discrimination, and caste subjugation. This is also part
of the Sanskrit legacy. We have a glorious legacy of Sanskrit, and we also have a very disquieting and a very unfortunate legacy that it was used as an instrument by human beings to subjugate large sections of our society. So, in our eagerness to promote Sanskrit, we should not ignore the troubled history of this language. Sanskrit is not spoken by many people, sir. Hardly 15,000 people in India speak Sanskrit. It has been the language of priests, it has been the language of the courts, but it's not been the popular language. Buddha preached in Magadhi. The Bhakti movement took place in regional languages. However, since Sanskrit is part of our cultural legacy, we take pride in it. So on the 3rd of February, 2020, there was an unstarred question in Parliament. This is unstarred question number 171 in the Lok Sabha. And the question asked the Minister of Culture, what was the expenditure on Sanskrit and what was the expenditure on other classical Indian languages? And I want to give this information to this House because we are in danger of giving greater importance to Sanskrit that it deserves at the cost of other regional languages. So the answer by the Minister of Culture on the 3rd of February 2020 reveals that in the last 3 years, the Government of India spent 640 crores on the popularization of Sanskrit. But look at the expenditure on other classical Indian languages. The Government of India spent 24 crores on Tamil, 3 crores on Telugu, 3 crores on Kannada, and 0 in Malayalam and Odia. These are the 6 classical Indian languages of India: Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and Odia. We have spent 650 crores on Sanskrit, 24 crores on Tamil, 3 crores on Kannada, 3 crores on Telugu, and 0 in Malayalam and Odia. This completely negates the policy which we have to follow. These are languages spoken by millions and millions of people. Tamil is not a language of Tamil Nadu alone. It's a national language. Kannada is not a language of Karnataka alone. It's a national language. Malayalam is a national language. Odia is a national language. Telugu is a national language. These are spoken by millions of people. But for a language that is spoken by 15,000 people, we are spending 650 crores. This is the admission by the Minister of Culture alone. Sir, we may not like this, but this is a fact that historically, Sanskrit has always been the elite language. I find my friend Bhupinder Yadav is shaking his head. Let me remind him what Valmiki Ramayana says when Hanuman is seeing Sita for the first time in Lanka. Hanuman tells himself, and I want to quote from the Valmiki Ramayana, Yadi vacham pradasyami dvijatiriva sanskritam ravanam manyamana mam sita bhita bhavishyati. If I speak like Sanskrit, if I speak in Sanskrit, Sita will get frightened thinking that I am Ravana. This is what Hanuman says, and this is what Valmiki says in Ramayana Sundarakand. Hanuman goes on to say, Avashyam eva vaktavyam manusham vakyam arthavat. I will therefore speak only in the language of the people. Even Hanuman didn't speak in Sanskrit to Sita. He spoke in the language of the people. And I wish this government speaks in the language of the people and spends more money for Tamil, Telugu, Kannada, Odia, Malayalam, not spending money
only in Sanskrit, because that is a very distorted picture of Indian civilization. So on the bill, there are three institutions: Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth in Tirupati, the Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth in Delhi, and the Rashtriya Sanskrit Sansthan in New Delhi. I want to make one suggestion to the Honorable Minister. The greatest name in Sanskrit grammar, the man who invented Sanskrit grammar, who is considered even a genius today by everybody, who lived in the 7th century BC, was Panini. I would request the Honorable Minister to name one of these institutions after Panini. Panini, after all, was born in the Northwest Frontier Province. Whether he would be eligible under CAA or not is a separate issue. But by naming one institution after Panini, we would be recognizing this great man who made Sanskrit what it is today. And it would also give a signal that Sanskrit is not India's legacy, it's not Hindu legacy, but it's a legacy of the entire subcontinent. Secondly, sir, the second institution I would suggest to the Honorable Minister, the second big name in Sanskrit grammar is Patanjali. Unfortunately, if you name an institution today after Patanjali, it will send the wrong signals. So I will not recommend Patanjali. There is a third name who we all students of Sanskrit have learnt when we were in school. The Ashtadhyayi and the Amarkosha. Panini's Ashtadhyayi and the Amarkosha of Amarasimha. And Amarasimha lived in Ujjain in the 3rd century AD. And I would request the Honorable Minister to name the second institution after Amarasimha and not Patanjali. So one institution after Panini and one institution after Amarasimha. Finally, sir, these 3 central universities will add to the 40 central universities that are under the Ministry of Human Resource Development. However, the track record of managing central universities is pathetic in the last few years. JNU has been destroyed. Allahabad University is being destroyed. So the notion that by becoming a central university, suddenly things will be set right has been proved wrong. And I would therefore seriously urge the Honorable Minister to give a thought to the governance structure for these central universities, to liberate the central universities from the stranglehold of the Ministry of Human Resource Development. Why should the minister be the chancellor of this central university? Why can't he find a distinguished Sanskrit scholar to be the chancellor? Divest your resources so that these universities can be run independently and professionally. I think this is a step in the right direction. These 3 institutions were started between 1960 and 1970. These are not new institutions. They were started, in fact, thanks to Maulana Azad, Jawaharlal Nehru, and Dr. Radhakrishnan. These were the 3 people who were responsible for these 3 institutions in a way, and they were set up between 1961 and 1970. We are converting them into central universities. It's a good step forward, and I hope that the Honorable Minister will respond to some of the suggestions I have made in a constructive spirit. Thank you, sir. विद्वान है, मैं इनको बधाई भी देता हूँ, लेकिन मेरा इन्होंने रेफरेंस दिया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। सर, अगर ये पूरे दुनिया और सभ्यता की लिगेसी संस्कृत है, तो इसको केवल एलीट की भाषा कह के हम भविष्य की दुनिया को वापस से रोकना चाहते हैं। हम सबकी संस्कृत बनाना चाहते हैं, तो उसी संदर्भ में बोलें, इसको एलीट भाषा ना बोले, ये सर्वमान्य की भाषा बने। ये सरकार का भी प्रयास है और हमारा भी प्रयास है। जारी है राज्यसभा में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर हुई अहम चर्चा का सारांश। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जारी है संसद संवाद।
राज्यसभा में 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में हुई चर्चा में कुछ सदस्यों ने अन्य भारतीय भाषाओं के विकास को भी समान महत्व देने की मांग की। वहीं ज्यादातर सदस्यों का मानना था कि संस्कृत हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भारतीय ज्ञान विज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। आइए देखते हैं चर्चा का सारांश। Thank you, sir. I rise to support this bill. I rise to support this bill with certain observations. Sir, there is no doubt that this is an admitted position that Sanskrit is the mother of languages. Many native and foreign languages find their genesis and evolution in Sanskrit. It finds its reference in the oldest of the authoritative religious and other texts. But sir, one of the endangered language is Sanskrit. In Kolkata, the oldest Sanskrit college has already been announced a deemed university by the government of West Bengal. And I'm happy that 3 of such universities are going to be deemed universities, are going to be transformed as regular universities under the Ministry of Human Resource Development. But sir, I have already stated that Sanskrit is an endangered language. The Sanskrit-speaking native population of India is reduced to almost negligible, as mentioned by Jairam Rameshji. As per census report 2011, so now I would like to speak in Sanskrit, for which I have already given a notice. गत जनगणनानुसारेण भारतस्य सकल जनेषु केवलम एकोविंशत्यधिक 800 सहस्राणि जनै स्वकीय प्रथम भाषा संस्कृत भाषा घोषित सन्ति। संस्कृत भाषिका प्राय राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्कल, कर्नाटक प्रदेशेन्तु वसन्ति। ईशान भारते जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात प्रदेशेषु संस्कृत वक्तारो न्यून सन्ति। राजनीति भाषयो संबंधे अभिन्नम्बं प्रत्यतो एतस्य विधेयकस्य पुरस्थापनम् अन्य भाषणम् अपेक्षया संस्कृत भाषाया वर्धनम् अपि च धार्मिक भाषिक अल्पसंख्यकानां संस्कृत भाषीकरणम् इति मन्यते। एतस्मिन् विधेयक मध्ये एकं प्रावधानं वर्तते यत् लिंग, जाति, मत, वंश इत्यादि विषयाधारेण विद्वज्जनेषु कोऽपि भेदः न करितव्यम्। परन्तु अस्माकं पूर्वानुभवं वदन्ति यत् एतेषु स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयेषु उपरोक्त प्रावधानानि सम्मानिता न सन्ति। स्थापना समये सुप्रतिष्ठित बनारस संस्कृत विश्वविद्यालयेन अपि एतादृशं खण्डं स्वीकृतम् आसीत्। तस्मिन् खण्डे प्रतिज्ञातम् आसीत् यत् एष विश्वविद्यालय समावेशी भविष्यति एवं ये शोधकर्तारः अध्ययनम्, अनुसन्धानम् अथवा व्यवसायकृते विश्वविद्यालयम् आगमिष्यति इतः सः कोऽपि भेदः न भविष्यति। परन्तु इयं वचनं मिथ्या जातः। विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे कार्यरतः एकं मुस्लिम अध्यापकः अन्य विद्वद्भिः महाशय सदस्ये च प्रताडित आसीत्। अन्येषु एकेषु प्रसंगेषु उपेक्षित जाते सह संबंधकर्ता अध्यापकस्य प्रताड़न अभवत्। एतेन प्रकारेण धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता इत्यादि मूल्यानां ह्रासो भवति। अतः एतत् आवश्यकम् आसीत् यत् सर्वकार विधेयक मध्ये परिकल्पितानि प्रावधानानि रक्षयति। तथापि एषः मार्ग दुर्गमः। क्वचित् जनाः वदन्ति यं एतस्य विधेयकस्य प्रयोजनं राजनीति प्रेरितम् अस्ति।
एवं शीघ्रेण सत्यं दृष्टये तस्मिन् समयपर्यन्तम् एतत् आवश्यकम् अस्ति यत् सर्वकारः कोऽपि तुष्टिकरणं विना परिकल्पनानुसारेण संस्कृतस्य अभिवर्धनं परिरक्षणं करोति च। Shriman, to conclude, I would request the government to keep in mind these verses of Adi Shankaracharya. Ma kuru dhanayana yauvana garbam harati nimeshat kalo sarvam. Dhanyavada, Shriman. धन्यवाद सुखेंदु शेखर राय जी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि अतीत से धीरे धीरे जो हमारे देश की अपनी नेटिव जो भाषाएं हैं, देसी भाषाएं हैं, वो ख़त्म हुई हैं बाहर की भाषाओं के प्रयोग से ही। एक वक्त था जब संस्कृत ही बोली जाती थी और सारे हमारे शास्त्र, पुराण, वेद सब कुछ संस्कृत में ही हैं, अब भी हैं, पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। लेकिन वो भी धीरे धीरे बिल्कुल बैसाखियों के सहारे चलने लगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे संस्कृत में नंबर आते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ अभ्यास में नहीं रहती है तो उस पर आना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आपने 3 विश्वविद्यालयों को जो उसमें से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ थी, एक राष्ट्रीय संस्थान था, संस्कृत संस्थान, उनको विश्वविद्यालय बनाने का इसमें प्राविधान किया है। लेकिन इसमें इतने सारे आपने क्लॉज दे दिए हैं और इतने बहुत, जब भारी कानून हो जाता है तो मूल लक्ष्य से चीज़, जो उद्देश्य आपका है, उससे भटक जाते हैं लोग। उसी में उलझे रहते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे सस्पेंशन होगा, कैसे बहाली होगी, किस तरह से। आपने टीचर्स के अपॉइंटमेंट की भी व्यवस्था की है, उसमें कहा है। लेकिन संस्कृत के लिए जब विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो शुरू में जो अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसकी पहली श्रेणी लेक्चरर की होती है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की होती है। आपने उसमें कोई लेक्चरर के प्रोविज़न नहीं किया है, जो इसमें दिया हुआ है। रूल्स में करेंगे अलग बात है, लेकिन इसमें उसका कोई प्रोविज़न नहीं। इसी तरीके से इसमें आपने अनुच्छेद, इसके क्लॉज 38 में स्टूडेंट्स काउंसिल की बात की है, और स्टूडेंट काउंसिल का जो हेड होगा वो डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर होगा। 20 लड़कों को नॉमिनेट करे, स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करेगी एकेडमिक काउंसिल, और 20 लड़कों को स्टूडेंट्स चुनेंगे चुनाव के जरिए। मेरा आपको सुझाव ये है कि स्टूडेंट्स काउंसिल की जगह स्टूडेंट्स यूनियन का नाम की दीजिए। और ये जो नॉमिनेशन की व्यवस्था है लड़कों की, एकेडमिक काउंसिल नॉमिनेट करेगी मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर करिए अलग नॉमिनेटेड, लेकिन यूनियन पूरी लड़कों की चुनी हुई ही होनी चाहिए। ये गलत धारणा है कि छात्र संघों की वजह से यूनिवर्सिटी के कैंपस में अनुशासनहीनता आती है। इसकी वजह से आपने देखा कि किस किस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आने लगे। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही राजनीति की नर्सरी हुआ करती थी, और बहुत बड़े बड़े लोग और नेता इन यूनिवर्सिटी से ही निकल के आए। और अब स्थिति ये है कि जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी वो एमएलए और एमपी हो जाते हैं, आज यहाँ बैठे तो कल वहाँ बैठ जाते हैं। योगा के लिए आपने इसमें व्यवस्था की है, हायर एजुकेशन में टीचर्स वगैरह के लिए, वो सिलेबस के लिए
तो योग तो ऐसी चीज है कि जो आप शुरू में सिखाते हैं, ऊपर जाके भी उसी को सिखाते हैं, तो उसके लिए अलग से कोई ऐसा प्रोविजन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। और संस्कृत को जीवित करने के लिए सबसे बड़ा सेंटर रहा है वाराणसी, काशी। काशी में राज्य का संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और काशी विश्वविद्यालय के अंदर भी बहुत बड़ा एक पूरी फैकल्टी है संस्कृत की। इनको काशी विश्वविद्यालय हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके उस विभाग को भी ठीक तरीके से अगर चलाएं तो जो संस्कृत का केंद्र रहा है एक तरीके से इस देश में, बनारस, काशी पढ़ने जाते थे लोग। जब काशी में कोई विद्वान नहीं मिलता था तब भगवान कृष्ण को संदीपनी गुरु छोड़ के चले आए थे काशी, तब वहाँ जाना पड़ा, वरना वो भी वहीं जाते। इसलिए काशी पर भी ध्यान रखिए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। श्री प्रशांत नंदा जी, आप संस्कृत में बोलेंगे। हाँ जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अहम बिजू जनता दल पक्षतः सर्वकारण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्लीज बैठ कर ना बात करें, आप बड़े सीनियर मेंबर, प्लीज। समर्थन करोमि। विश्वविद्यालय संबंधी आनीत प्रस्तावस्य अहम समर्थन करोमि। संस्कृत भाषा अति प्राचीन कालात् आरभ्य विश्वे भारते च व्यवह्रियमाणा अस्ति। एषा भाषा अद्यापि प्रासंगिक अस्ति। अतः संस्कृत भाषा तस्य साहित्यं च जगति महत्वं भवते। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषया संग्रथिता प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु संग्रहित अद्यापि विश्व मानव कल्याण पथ प्रदर्शिका अस्ति। अतः संस्कृत भारतमेव शोभते इति वक्तुं शक्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य अत्यंत प्राचीन भाषा, ऋग्वेदस्य प्राचीनतम ग्रंथ इति सर्वे अंगीक्रियते। संस्कृत भाषाया आश्रयणेन 5,000 वर्षेभ्योऽपि अधिकस्य ऐतिहासिक गौरवस्य भावपुष्ट भवति। अतः भारतीय इतिहासस्य अस्मिताया च केन्द्रीभूतस्य संस्कृतस्य ऐतिहासिकं महत्वम्। आध्यात्म जगति पाश्चात्य दर्शने ही अप्राप्त नामपि गूढ़ रहस्यानां देवीय तत्वानां व्याख्यानां विस्तृत रूपेण भारतीय दर्शन ग्रंथेषु कृतमस्ति। अननैव महत्वपूर्णेन आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतं जगद्गुरु आसीत्। अद्यापि बहवः वैदेशिकाः स्वस्वदेशेषु भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति अथवा अध्येतुं भारतम् आगच्छन्ति। यद्यपि अद्य भौतिकवादस्य प्राधान्यं दृश्यते, तथापि तेन सर्वासां मानवीय समस्यानां निरासनं समाधानं न भवति। समस्त मानव कल्याणार्थम् आध्यात्मिकवादः एवं शरणम्। विविध भाषाणां तुलनात्मक स्वरूप विश्लेषणे संस्कृत भाषा आधारभूता। विविध भाषाणां अन्य भाषासु अनुवाद काले सांगतिक माध्यमेन यंत्रानुवाद काले व संस्कृत व्याकरणस्य महती आवश्यकता भवति। अतः प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी एम ब्लूमफील्ड महोदय उक्तवान्, अष्टाध्यायी इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। वैज्ञानिक महत्वं संस्कृत भाषायां भारतीय प्राचीन विज्ञानस्य बहवः ग्रन्थाः लभते। भूगोल खगोल विज्ञानस्य च आर्यभट्ट भास्कराचार्य वराहमिहिर प्रख्याताः। चिकित्सा विज्ञाने आयुर्वेद विषयकाः बहवः ग्रन्थाः सन्ति। भौतिक विज्ञाने कणादस्य महत्वपूर्ण योगदानमस्ति। रसायन विज्ञाने रसरत्नाकर च रसेन्द्र चूडामणि इत्यादयः ग्रन्थाः विद्यन्ते। अतः संस्कृत भाषा न केवलं श्रेष्ठ भाषा अपितु प्राचीन कालात् अद्यावधि भारते प्रयुज्यमाना अमृत भाषा अस्ति।
अतः conclude, वर्तमानकाले प्रशांत बंदा अस्य जी। प्रासंगिकता अस्ति भविष्यकालेपि संस्कृतं सदा प्रासंगिक भविष्यति संस्कृतं केवलं अध्ययनं न अपि तु उच्चतर गवेषणापि करणीयं तेन भारतस्य विकासः भविष्यति इति विनम्य मम कृते अवसर दत्त हेतु अतः धन्यवाद अर्पणं करोमि। संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के राज्यसभा में पारित होने से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति की पहचान अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में होगी। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। संसद संवाद के अगले अंक में हम हाजिर होंगे अन्य सदस्यों की राय और मानव संसाधन विकास मंत्री के जवाब के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।